Hello viewers, welcome to my channel. I am Kalpana. In this video, I am going to discuss here redox reaction from class 11th. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए हम और आप मिलकर के आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हम रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ क्यों रहे हैं। Why it is useful for us? Redox reaction always helpful in a field of the pharmaceuticals, industrial field, agriculture field. यहाँ पे सारी चीजें redox reaction के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, इसीलिए इसे हमें समझने की नीड है। तो what is the redox reaction? First thing is the transformation of matter from one form into another form occur through the redox reaction. Redox reaction के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ दो प्रोसेस वर्क करती हैं। जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ वर्क करती हैं तो इन दोनों प्रोसेस को इंक्लूड करके उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। So let us discuss here what is the redox reaction. तो redox reaction को बेसिक टर्म में हम किस तरीके से जानते हैं वो पहली चीज हम देख लेते हैं। In redox reaction in previous classes we have also learned about this. The addition of oxygen of an element or compound is called oxidation. Always the addition of oxygen of an element. For example, magnesium is here. When it reacts with oxygen, it forms MgO. That means in magnesium, oxygen is adding here. So that's why this is the example of the oxidation reaction. Oxidation reaction. Now next equation is sulfur react with oxygen and it forms sulfur dioxide, means addition of oxygen happening there, so that's why यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ऑक्सीजन इज अ, यहाँ पे वर्क कर रही है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। So in this the element magnesium and sulfur are oxidized on account of addition of oxygen to them. Means यहाँ पे MgO then SO2 both metal and non-metal, means magnesium is a metal but sulfur is a non-metal and both having the addition of oxygen, दोनों पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। That means both are oxidized here, means यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। Next process is the removal of hydrogen from the substance is also called the oxidation. यहाँ पे एक चीज और ऐड करेंगे, अभी हमने पिछली स्लाइड में चेक किया कि addition of oxygen is a oxidation reaction and also include to here the removal of hydrogen from a substance is also called the oxidation. तो means यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि addition of oxygen as well as removal of hydrogen also a oxidation reaction. तो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1, मीथेन CH4 is a methane gas. When it attach with oxygen, when it react with oxygen, so it forms CO2 and water molecule is releasing here. Means मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन कर रही है। मींस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मींस ऑक्सीजन removing the hydrogen and addition of the oxygen is happening here. So we can say this, so this is the example of the oxidation. Next example is hydrogen sulfide gas react with water, it forms sulfur and water molecule is releasing here. Means hydrogen sulfide means यहाँ पे सल्फर जो है से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, from removing here hydrogen gas, so hydrogen atom, so it is the example of the oxidation.
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि addition of oxygen and removal of hydrogen also having the example of the oxidation. Next, one more thing I am also including here, the addition of electronegative elements is also called the oxidation reaction. Oxidation. तो means हमने अभी तक क्या देखा? Addition of oxygen and removal of hydrogen. Now next one I want to add here the addition of electronegative element. Means magnesium is a metal and fluorine is an electronegative element. When attached with magnesium, so it's also the example of the oxidation. तो यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ऐड हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द oxidation reaction. Now next reaction is when magnesium attach with chlorine, so it form magnesium chloride. It's also the example of the oxidation. Then next example is magnesium attached with sulfur. Sulfur is the more electronegative than magnesium. So it's also the example of the oxidation. One more thing I am also including here, removal of electropositive element is also the example of the oxidation. So removal of the electropositive elements means when electropositive elements when removed from the compound. For example, this is the compound of potassium ferrocyanide. पोटाशियम फेरोसाइनाइड. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं K4 इज देयर. सो पोटाशियम फेरोसाइनाइड यहाँ पे रिलीज होके K3 इज यहाँ पे बन रहा है K3FeCN6. अभी यहाँ पे K4 था, तो यहाँ पे जो पोटाशियम है इट इज द रिमूविंग फ्रॉम दिस कंपाउंड. सो वी कैन से दिस removal of electropositive element means potassium is the electropositive elements to here. So potassium is releasing from here, so it's also the example of the oxidation. So hence oxidation is defined as the addition of oxygen or electronegative elements to a substance or removal of hydrogen or electropositive elements from a substance. So I am repeating again here. So what is the oxidation? When addition of oxygen and removal of hydrogen. So it's an example of the oxidation. Now next one is the addition of the electronegative elements and removal of the electropositive elements is an example of the oxidation reaction. So next one I am taking here reduction. So clear? Oxidation आपको clear हो गया होगा. Now next one is the addition. मेरे साथ साथ कॉपी पेन लीजिए और साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. अब आगे देखते हैं व्हाट इज द रिडक्शन. जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन. रिडक्शन इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन में क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. But now here removal of oxygen or electronegative elements from a substance or addition of hydrogen or electropositive elements to a substance is an example of the reduction. The removal of oxygen. So removal of oxygen, अब यहाँ पे देख लिया कि HgO is a compound. तो Hg में से क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन इज रिमूविंग, सो इट चेंज इनटू Hg, देन ऑक्सीजन इज रिलीज. सो ऑक्सीजन इज रिमूविंग हियर, सो दैट्स व्हाई इज द एग्जांपल ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट थिंग इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स? मींस iron attached with the chlorine. So chlorine is the electronegative element than the iron. So here
Cl3 is there. So in product side only having the FeCl2 means one chlorine is releasing from here to here. So that means it's releasing from here and adding to the hydrogen. So this is the ferric chloride change into ferrous chloride along with the ferrous chloride releasing here hydrochloric acid. So that is the example of the reduction process. Now one more thing I am adding here, the addition of hydrogen. From previous things I have learned about the addition of the oxygen is there, but here addition of the hydrogen but removal of the oxygen is here. So addition of hydrogen, for example, this is the example of the ethene. CH2 double bond CH2. Ethene, ETHENE, ethene. So when it attach with hydrogen, so it change into ethane. Hydrogenation of oils. So this is the process of the hydrogenation of oil. Of oil. So one more thing I am also adding here like a previous thing, addition of electronegative elements. वहां पे क्या था, addition of the electropositive element was just opposite to the oxidation process. The addition of the electronegative elements means HgCl2 is here and SnCl2 react both things is here. So after that Hg2Cl2 is here and SnCl4 means electronegative element is addition of the electronegative elements means Hg is increasing here and chloride also increasing here. So this is the example of the reduction process. Now next one is the redox reaction in term of electron transfer reaction. अभी हमने देखा in term of addition of oxygen and addition of the hydrogen, addition of the electronegative and reduction of the electronegative or electropositive elements. Now next thing is the if oxidation and reduction occur simultaneously then it is called the redox reaction. यहाँ पे अब हम देखेंगे कि अगर ये दोनों प्रोसेस किसी भी इक्वेशन में simultaneously वर्क कर रही है that means that equation is an example of the redox reaction. So this equation is Na react with Cl2 it form NaCl और N यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 2Na plus NCl minus. So first one the Na plus. So what is the oxidation number? So Na oxidation number is 0 and it is increasing here. So that means क्या हो रहा है? Transfer of the electron means loss of the electron means जब कहीं पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, loss of electrons, so it is the example of oxidation reaction. So this half reaction is involve loss of the electron. So loss of the electron, sodium, when removing one electron, so it change into cation. So this is the example of the oxidation. Means यहाँ पे अभी देखेंगे 281. So this is the example of the sodium electronic configuration. Now next electronic configuration is 28. So one electron is removing from here. So this is the example of the oxidation. So next half reaction is a chloride. So it is the related to the redox reduction reaction. So how can we say this? This is the reduction process. So Cl2 is the oxidation number is 0. Means यहाँ पे क्या होगा? इस पे जो चार्ज है वो 0 है. Then its charge is gain of the electron. So that means chlorine is taking the electron. So that's why it changed into Cl minus. So it's an example of the reduction reaction. अब यहाँ पे just opposite to this one.
सो जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, और जहां पे रिडक्शन हो रहा है वो क्या है, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो क्लोरीन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द सोडियम इज द रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहाँ पे सोडियम क्या है, सोडियम एक रिड्यूसिंग एजेंट है और क्लोरीन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. So now, what is the oxidation? Loss of electron by any compound. So this we call the oxidation. Now next one, the reduction, gain of electron by any compound. So it's an example of the reduction process. So now next thing is, what is the oxidizing agent and what is the reducing agent? So acceptor of electron, अगर ये लूज कर रहा है तो इसे एक्सेप्ट करने वाला कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मींस जिसका रिडक्शन हो रहा है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है. So now next one is the electron transfer reaction. तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन. सपोज इन दिस बीकर हैविंग द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और हमने उस पे एक जिंक की रॉड को डिप कर दिया. हमने लिया यहाँ पे एक बीकर जिसमें है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और इसमें ऐड किया एक जिंक की रॉड को, जिंक की रॉड को इस पे ऐड कर दिया, डिप कर दिया जिंक की रॉड को और ये सोल्यूशन यहाँ पे भरा हुआ है. आफ्टर सम टाइम जो जिंक है वो क्या होगा, Zn2 प्लस बना लेगा और कॉपर जो है, जो Cu2 प्लस यहाँ पे कॉपर केटायन था वो कॉपर में बदलता है. तो चलिए ये देखते हैं किस तरीके से ये पॉसिबल है. तो यहाँ पे हमें पता है इन रिएक्टिविटी सीरीज जिंक इज अपसाइड देन द कॉपर. इन रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को लर्न होगा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके नहीं सॉल्टी पकाता है. केदारनाथ का माली आलू जरा Zn फीके नहीं सॉल्टी पकाता है. उसके बाद आती है हमारी कॉपर. देन तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं जिंक इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो यहाँ पे क्या करेगा, जिंक इज अ मोर रिएक्टिव, सो जिंक डिस्प्लेस टू द कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा तो कॉपर हट करके जिंक की रॉड पे जाकर के स्टिक कर जाएगा और इस सोल्यूशन पे जिंक जो है वो धीरे धीरे ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है इसके बदले में हम यहाँ पे देखेंगे कि होता क्या है. जब जिंक कॉपर की जगह पे और कॉपर जिंक की जगह पे एक्सचेंज होंगे तो आफ्टर सम टाइम हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बीकर में कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि जो रॉड अपन ने कॉपर की डिप की है, जिंक की जो रॉड की डिप की है उसके चारों तरफ कॉपर यहाँ पे स्टिक कर जाता है और जो हमारा सोल्यूशन था, जो ड्यू टू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हैविंग द ब्लू कलर, तो ये जो है कलरलेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर के एटम थे वो जाकर के जिंक की रॉड पे चिपक गए. तो यहाँ पे अब अपन देखते हैं इन जिंक जिंक इज रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन, मीन्स यहाँ पे जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं जो कि यहाँ पे चार्ज से शो हो रहा है. देन कॉपर टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू हियर, तो ये क्या हो रहा है, Cu2 प्लस से कॉपर में ये चेंज हो रहा है. तो अब यहाँ पे अगर ये भी देखें, नेक्स्ट रिएक्शन इज कॉपर एंड सिल्वर. कॉपर और सिल्वर को ले लिया तो अपन ये देख रहे हैं कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. कॉपर पहले आता है और सिल्वर हमारा बाद में आता है. तो यहाँ पे कॉपर रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन, it changes into Cu2 plus and silver
gain 2 electron and it change into Ag. Here copper has solid, it oxidizes to Cu2 plus and Ag2 plus aqueous is reduces to the Ags. तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉपर लिया हमने, कॉपर का सोल्यूशन ले लिया कोई भी, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने ले लिया सिल्वर का सोल्यूशन ले लिया और कॉपर की ले ली रॉड, जिसको यहाँ पे डिप किया। डिप करने के बाद अब हम देखेंगे कि आफ्टर अ सम टाइम जो ये हमारा कलरलेस था, ड्यू टू द Ag हमारा सोल्यूशन कलरलेस था, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में। और कॉपर के चारों तरफ क्या यहाँ पे इंक्लूड हो गया, कॉपर के रॉड के चारों तरफ Ag जा करके यहाँ पे स्टिक हो जाता है। So this is the example of the redox reaction. So the electron releasing tendency of the metal in order zinc, copper and Ag जो हम कहां से ले रहे हैं, due to the electrochemical series. So zinc is a more reactive than copper than Ag. So due to the reactivity series ये प्रोसेस हमको देखने के लिए यहाँ मिल रही है। अगर यहाँ पे हम चेंज कर दें कि कॉपर के सोल्यूशन को हम यहाँ रखें और Ag का हम क्या लें, यहाँ पे रॉड लें, तो ये जो है हमारा कॉपर Ag को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमको क्या है, कॉपर इज अ मोर रिएक्टिव देन Ag. So now next thing is the oxidation number. तो यहाँ पे अब एक नई चीज आ रही है, what is the oxidation number? So oxidation number denote the oxidation state of an element in a compound. तो अपन ये देख रहे हैं कि oxidation number denotes the oxidation state of an element in a compound. तो किसी भी compound में oxidation number उसके किसको डिनोट करती है, कि वो कितने नंबर्स को डिनोट, ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे बताती है। Ascertained according to the set of the rules formulated on the basis that electron in a covalent bond belong entirely to more इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो चलिए अब यहाँ पे समझ लेते हैं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे एक छोटे से ट्रिक देखते हैं, लियो मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लॉयन गोज गर्ल, लॉयन गोज गर्ल मींस अपन देखते हैं कि लॉयल LEO लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, GER gain of electron is reduction, means loss of electron is oxidation and the gain of electron is reduction. तो चलिए समझ लेते हैं rules of calculation of oxidation. तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं जो कि हम कि ऑक्सीडेशन के कैलकुलेशन पे यूज करते हैं। The cation is written first in a formula followed by the anion. अगर anion के थ्रू फॉर्मूला फॉलोड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वहां पे केटायन को फर्स्ट लिखते हैं, देन anion मींस पॉजिटिव वाला पार्ट पहले आएगा और नेगेटिव वाला बाद में। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ फ्री एलिमेंट इज ऑलवेज 0। जो कोई भी फ्री एलिमेंट है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। फॉर एग्जांपल हीलियम एंड नाइट्रोजन हैव द ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, क्योंकि हीलियम का ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि नाइट्रोजन में N प्लस N मिल करके N2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। N is a N2। N2 तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। तो दो चीजें क्लियर हो गई कि फर्स्ट वी हैव टू राइट द केटायन देन एनायन, देन नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीडेशन नंबर द फ्री एलिमेंट इज ऑलवेज 0। थर्ड पॉइंट इज द ऑक्सीडेशन नंबर द मोनोएटॉमिक आयंस
इक्वल द चार्ज ऑफ द आयन। अब यहाँ पे जैसे मान लो Na प्लस है, तो Na प्लस हैविंग द प्लस 1 चार्ज, सो दैट्स व्हाई इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज प्लस 1। सपोज N3 की बात करें तो N3 माइनस, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी -3। द यूजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एक्सेप्ट ऑफ मेटल हाइड्राइड विच इज -1। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन की ऑलवेज 1 होती है, कैसी 1? +1। लेकिन जब ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, जो फर्स्ट एग्जांपल आपने अपन ने देखा, तो यहाँ पे ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है। So next point is the oxidation number of oxygen is compound is usually -2. Yes, I know. तो ऑक्सीडेशन की जो नंबर है वो -2 होती है वैलेंसी, बिकॉज ऑफ द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज -2। बट एक्सेप्शन इंक्लूड द peroxide and superoxide having the different oxidation state of the oxygen। हाइड्रोक्साइड के केस में, सॉरी peroxide के केस में -1 होती है एंड superoxide के केस में -½ यहाँ पे होती है। तो अब अपन इसको चेक करते हैं विद द एग्जांपल। व्हेन ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन लाइक ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, सो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड द ऑक्सीजन इज असाइन्ड द ऑक्सीडेशन नंबर इज +2 and +1। The oxidation number of group first A element of compound is +1. The oxidation number of group 2A compound is oxidation is +2। तो ये है rule। So next more rules are there. The oxidation number of group 7th A element is the compound is -1 except when the element is combined with one having the higher electronegativity। The oxidation number of Cl is -1 always। अपन ने अभी तक देखा है, फॉर एग्जाम्पल H प्लस एंड Cl माइनस, सो 1। बट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज +1 in HOCl। In case of HOCl, so oxidation number is +1। The algebraic sum of the oxidation number of all the atom in neutral compound is 0। ये अपन अभी चेक करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे 0 रखते हैं। The algebraic sum of the oxidation number of polyatomic ion is equal to the charge of ion। The sum of the oxidation number is SO4 2 minus is -2। तो चलिए समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से कि किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देख लिया H2SO4। तो इन H2SO4 व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? तो यहाँ पे देखेंगे H की क्या होती है? +1 is the oxidation number। Then how many atom is including here? 2। Then put the plus sign। Then now come to the sulfur। Sulfur having the number is 2। So valency of the sulfur is -2, then into X। अब अपन को यहाँ पे in H2SO4 find the oxidation number। What is the question? Oxidation number, 1 minute। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, हमें किसकी फाइंड करना है? सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने क्या देखा? H2SO4, तो फर्स्ट हाइड्रोजन हैविंग द +1, देन कितने एटम अटैच है? इनटू 2, देन प्लस सल्फर -2 इनटू X, क्योंकि हमें इसे फाइंड आउट करना है, देन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, देन ऐड कितने से हो रहा है? 4 से। देन टोटल हमने क्या पढ़ा था अभी रूल, कि टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे 0 हम रखते हैं। देन सॉल्व द, ये अब अपन सॉल्व करेंगे तो +2, देन प्लस, अब यहाँ पे क्या आ गया अपने पास? +2, देन नेक्स्ट वन इज द X,
सॉरी इसे टू, सॉरी ये टू नहीं रखेंगे हम, क्योंकि हमें तो इसकी पता नहीं है, हमें इसकी फाइंड आउट करना है। इसे करेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे करेक्ट कर लेते हैं। करेक्ट करते हैं। इन H2SO4 वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। तो सल्फर की अगर हमें करेक्ट करना है तो -1 इज अ valency of hydrogen, then so this is the oxidation number of hydrogen. Then how many atom? 2. Then plus we have to find out the oxidation number of the sulfur, तो हम उसे क्या मान लेंगे? X. Then plus अब अपन को देखना है ऑक्सीजन having the oxidation number 2, then into 4, अब अपन यहाँ पे देखते हैं 0. So now -2 then plus x plus यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, सो -8, सो 0. अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जब इधर x आएगा तो +8 देन माइनस, तो अपने पास माइनस तो इधर ही है, देन -2 आ गया अपने पास 6. सो x सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। इन नेक्स्ट एग्जांपल KMnO4, KMnO4, इसमें हमें किसके निकालनी है? फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, यहाँ पे मैग्नीज की हमको निकालनी है। तो इसे हम मैग्नीज जिसकी निकालनी होती है उसको हम मान लेते हैं x। तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल अपन को K के लिए है +1, देन प्लस मैग्नीज की हमें फाइंड आउट करनी है, देन प्लस क्या होती है -2 इंटू 4, टोटल की कर ली हमने 0। तो अब यहाँ पे देखना है +1 प्लस x देन प्लस माइनस प्लस माइनस 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 हो गया, देन 8 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें किसकी फाइंड आउट करनी है? x की। x मीन्स मैग्नीज, यहाँ पे हमने ले लिया, ये हो गया हमारा प्लस, जब ये इधर आया तो ये क्या हो गया -1, और हमने यहाँ पे ले लिया, ये हो गया हमारा 0। तो मैग्नीज की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ये हो गया हमारा प्लस, इसे करेक्ट कर लीजिए, ये भी हो गया हमारा प्लस। जब हम ये आएगा पॉजिटिव तो ये हो जाएगा हमारा इधर नेगेटिव। ओके, तो H2SO4 को अच्छे से क्लियर कर लीजिए और इसे करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैट मीन्स यहाँ पे वैलेंसी क्या होगी? +1 इंटू 2 प्लस x -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया? +2 x माइनस x इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर दिया तो हमारा आ गया +6। देन मैग्नीज की हमारी ऑक्सीडेशन नंबर है +7। एक और एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमने ले लिया K2Cr2O7, सो फाइंड आउट द क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे ले लिया +1 इंटू 2 देन प्लस, अब अपन को क्या निकालनी है? हमें यहाँ पे क्रोमियम की फाइंड आउट करनी है। तो जब हमें क्रोमियम की फाइंड आउट करनी है तो उसको हमने मान लिया x, बट यहाँ पे कितने एटम है? यहाँ पे 2 एटम्स हैं क्रोमियम के, तो इसीलिए मल्टीप्लाइड बाय 2, देन प्लस ऑक्सीजन -2 होता है, देन इनटू 7 इज इक्वल टू 0। अब अपन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आया 2 प्लस 2x
2x प्लस माइनस माइनस, देन ये आ गया 14 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, x इधर ले लिया, तो 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 2, तो यहाँ पे आ गया अपने पास 12। अब हमने 2x इज इक्वल टू 12, अब आगे ले लिया हमने x इज इक्वल टू 12/2, तो ये आ गया हमारे पास 6। सो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +6। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।